Hello, Assalamu alaikum, and a very good evening to all of you. Thank you very much for joining in. Today is going to be our uh, final session on the business canvas, the business model canvas, and interesting, conclusive conversation. Remember, this is the phase one of the canvas preparation. There's going to be a phase two towards the end as well. इंटरेस्टिंग कि हमने इस स्टेज तक इसको कवर किया उसके बाद जो कुछ स्किल्स हम अलोंग द वे लर्न करेंगे उससे अपने आइडियाज को बिजनेस आइडियाज को और ज्यादा रिफाइन करेंगे और उनको और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे आइडियाज को रिचर कैनवस फुली लोडेड so that's what we are going to attempt to do. मुझे कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी है आज आई मेक दोज अनाउंसमेंट्स आल्सो अच्छा आप लोग गुड इवनिंग पे अभी गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है मुझे तो मैं आई मेक दोज अनाउंसमेंट्स एंड आज हम हाउसकीपिंग के लिए just informing all of you we will be taking the namaz break at around 7 o'clock because कराची में नमाज तकरीबन 7:05 पे हो रही है लाहौर के अंदर 6:45 पे हो रही है और इस्लामाबाद इज आल्सो अराउंड लाहौर के टाइमिंग सो आई थिंक 7 to 7:10 हम लोग नमाज ब्रेक लेंगे um, just wanted to express or share my gratitude to all of you and that is that unity time, yeah. So my gratitude to all of you. I'm so happy and you know so proud of the fact कि हमारे जितने स्टूडेंट्स एंड एफिलिएट्स इस ग्रुप में मौजूद हैं 6 digits के A+S ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद हैं they are all acting very professionally. Abhi tak, I haven't seen even a single below the line comment in the WhatsApp group. And number two, the quality of work that our affiliates and students churning out, it is nowhere less than what the members are producing at the moment. So keep up your good work. This gives us a very good hope that the future of ACCA is very bright, which means when all of you become ACCA members, and some of you have been told कि इस ग्रुप के अंदर ऐसे affiliates मौजूद हैं जो already members बन चुके हैं. So congratulations. Till the time we shift you to the other group, congratulations to all of you also. And please keep up this spirit. Please keep up the good work. Okay. Just because all of us, we keep comparing the quality of work produced in each group, the quality of conversations happening in both groups. I'm very happy with the way you are taking the initiative forward. I was talking to members today and I am in touch with members. So I was making some phone calls asking members about if COVID has impacted their lives, and discussing such things. I was quite surprised to see that quite a number of members were complaining that COVID has hit them bad, and their salaries have been impacted. जो हमने if you remember orientation पे जो हमने discussion की थी regarding subscription fees and salaries, मुझे मौका मिला लोगों से बात करने का तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस सैलरी स्केल से या उस स्टाइपेंड स्केल से बाहर नहीं निकल सके हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको मेंबर बने हुए 1 से 2 साल हो चुके हैं. तो आई वाज क्वाइट सॉर्ट ऑफ perturbed और मेरी मैं थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ डिस्कशन भी कर रहा था लोगों के साथ कि आप लोग क्यों बोल्ड इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं. आप लोगों को you should have looked out for this opportunity to जो ACC आपको प्रोवाइड कर रहा है 6 digits प्लेटफॉर्म पे. आप लोगों को you should have grabbed hold of this opportunity, right? It would have given you an opportunity to step back, look at your career direction, make important adjustments to your career direction, and then continue forward with objectives, aims in mind, and how to achieve them. So I think you're very lucky, and I would say
inspirational also, because you're taking time out, you're regularly attending the sessions, you are contributing very positively to the conversation. So please, once again, keep up that good work. अच्छा जी, आज हमने I have a sad announcement to share with you, or uh, we will observe a minute of silence also. There's a very young member of ours. His name was Muhammad Zuhair, and we got to know today, he was based in Faisalabad. We got to know today that Muhammad Zuhair, um, you know, passed away today because he was suffering from blood cancer. Very unfortunate. He was a part of our ACCA family, um, and अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप लोग सब लोगों को सेहत के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का मौका दें. लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा ग्रीफ होता है, एक ऐसा गम का मोमेंट होता है कि जो कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और जो सिबलिंग्स होते हैं, ये डायरेक्ट फैमिली होती है, ये फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए इस मोमेंट से गुजरना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इस वक्त जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली को सपोर्ट की, और फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को सपोर्ट की, वो आई थिंक हम सबको ऑफर करनी चाहिए. हम इंशाल्लाह एसीसी की तरफ से एक कंडोलेंस का लेटर मोहम्मद जुबैर के घर पे भिजवाएंगे, and let's all remember him in our prayers, and we will observe a 1 minute silence, और at the same time हम मोहम्मद जुबैर के लिए सूरत फातिहा और सूरत इखलास 3 दफ़ा हम पढ़ के उसको सवाब पहुंचाएंगे. तो प्लीज 1 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, और लेट्स प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल. चलिए जी, let's resume our work for today. All right, so the business model canvas. Let's do a refresher of what have we discussed in the last session. Um, I am looking for hand raises for people who are going to share with us between the last session, the last unmoderated session, and the session that was held day before yesterday. What were your learnings, and what ideas that you, or what stumble blocks you came across in this unmoderated session, जो कि clear out हुए आप लोगों के परसों वाले session के अंदर. So I want to hear from the participants on this, and then आज के लिए भी हम बिजनेस मॉडल्स कुछ शेयर कर रहे होंगे. तो कीप योर बिजनेस मॉडल्स रेडी. लास्ट टाइम हमने 2 बहुत इम्प्रेसिव बिजनेस मॉडल्स देखे, हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी की,
तो आज के लिए भी अपने बिजनेस मॉडल्स तैयार रखें। निज़ाम आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे आपने इन बिजनेस मॉडल्स को निज़ाम के साथ शेयर करना है। चलिए, so I'm waiting for hand raises. People are going to brief us कि उन्होंने क्या लर्न किया है बिटवीन द अनमॉडरेटेड सेशन और जो लास्ट सेशन आप लोगों का मॉडरेटेड था, इन दोनों के दरमियान में क्या लर्न किया। वी केम टू नो दैट देयर वर स्टम्बल ब्लॉक्स, कुछ थोड़े से क्लैरिटी के इश्यूज आ रहे थे आप लोगों को इन द मॉडरेटेड सेशन, अनमॉडरेटेड सेशन, and then the last session that Sajid conducted, there were there was clarity offered, etc. So let's hear from all of you on what were those points so that सब लोगों के जहन में एक दफा रिफ्रेश हो जाए। जी, who is going forward? बारिश का पहला कतरा कौन है? फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ और साथ साथ देख रहा हूँ। इंतजार करना आसान नहीं होता ना, इसलिए मैंने कहा मैं फ्रेंच फ्राइज साथ साथ। जी, no hand raises so far. Shall I ask questions then? Yeah. Come on, come on. All brave soldiers of ACCA, come on. And I can see uh, all the important names here, but nobody's speaking up. What's wrong? Chapli burger, exactly. मुझे याद आ गया. Thank you very much, Murtaza. Chapli burger was fantastic last time, very juicy. So उसका business case भी हमने discuss किया था. That's a good reminder. Thank you very much. So anybody wants to pick up on that idea again? No? Murtaza, आप ही क्यों नहीं? You jump in, please. Murtaza Hussaini. Shall I unmute you? Let me see. Murtaza, you be ready. Since you mentioned the food item. Murtaza, आप hand raise कर दें तो आसानी हो जाएगी मुझे. Okay, so you did? Yes, I can see you now. और राबिया शरीफ ने भी हैंड रेज किया हुआ है. जी मुर्तजा, प्लीज गो ऑन. एंड राबिया, मैं आपका भी अनम्यूट करता हूँ माइक, इसके बाद आप बोलिएगा. जी मिस्टर चपली बर्गर. Murtaza, go on, speak. Can't hear you. I can't hear Murtaza. Okay, Salman, thank you very much. You're writing that the idea was at a raw stage in the unmoderated session, but Sajid really helped to find the missing parts of the puzzle and put them together. G, दूध चाय, निम्को, चपली बर्गर, all of those. मुर्तजा, आपका मेरा ख्याल है कोई ऑडियो का इशू आ रहा है. Let's go on to Rabia Sharif. Rabia, can you please unmute yourself? We are unable to hear Rabia as well for some reason. Is there something wrong with my headphones? No. Nizam, can you hear me? Loud and clear, sir. And can any one of you hear Murtaza or Rabia? No, unfortunately not. आप लोग प्लीज अपना जरा अपने ऑडियो इक्विपमेंट चेक करें. सलमान, मैंने आपको अनम्यूट किया. प्लीज ट्राई टू स्पीक. यस, वी कैन हियर Salman. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you, Salman. Okay, yeah. Hi, Harun. Hi, everyone. This is the first time I'm speaking to you guys. Wow. First of all, I would like to say thank you, guys, for having me.
and it's been an honor to be in this special program designed specially for people like me by ACCA. Thank you, Harun Good luck. sir. Thank you, Sajid sir. Uh, Regarding the things we learned in the unmoderated session or in the previous session, uh, like someone recently mentioned the juicy chapli bites. I was gonna say that, but someone already Mhm. mentioned that, so that is All already right. explained. Yeah. So it is really exciting to be on this platform and getting new ideas. Apart from the application of that business canvas model, we are Hmm. learning new business ideas as well. So Hmm. in the last unmoderated session, what I felt was that instead of focusing on the model, we were more focusing on the business ideas that were being delivered. Yeah. So pretty excited to learn new things going forward as well. So I think Thank you everyone. that's an interesting element that we were discussing business ideas previously. Uh, we are also looking at different elements of the canvas और आज specifically fundraising के ऊपर conversation होगी. But Salman, आपने जो भी एक point raise किया that the business idea had already been picked up. That's exactly how it happens in the real life. When you're thinking of an idea, all of a sudden you find out that somebody else has already thought about it. But then you start thinking of Absolutely. how can you Yeah. do better than that? What is going to be your unique selling proposition, right? But on this Right. forum, I think the advantage is going to be the importance of partnerships. So if you think somebody has already mentioned the juicy chapli kebab burger, right, and you had a similar idea, right, it's time to converge and time to partner and look at the impact at a and a bigger scale. So I can tell you about it. आप सब लोगों ने शायद वो वीरा 5 वाली story सुनी होगी हमारे members की. Two of our members were both working for Coca-Cola. They were friends, and they opened up this Thai restaurant, very exclusive Thai cuisine in Lahore, and they are, mashallah, doing very well. So that is the sense of partnership that you're talking about. Okay. So Salman, Okay. One thing, Harun, if I would say, okay, it's go on, go on. one thing that I felt here is that instead of focusing on some real applicable things like anything that could be done, some of the teams are coming up with the hypothetical ideas. Like there is an idea, I believe, whether it has been discussed or not, the fruit selling thing where we are trying to sell things online, and then there is this SMD manufacturing idea. Mm-hmm. These Mm-hmm. are more of the hypothetical sort of ideas, it seems like, instead of No, but the actual something practical. no, but I think I would not say these are hypothetical. People, I mean, that's exactly how ideas are conceived and originated, right? It's Hmm. I mean, the how part. If you remember the objective setting process, right? वो हम इस पे भी apply कर सकते हैं. Uh, Hmm. so उसमें जो how part conversation of the conversation है, that comes much later. You first think about why and what, yeah, and then at a later stage you start thinking about how are you going to do it. So if it is SMD bulbs, right? If at this stage you're thinking about you know why and what, so you know is there a scope for this, is this a feasible idea, etc. What do you want to achieve through this idea, all that. um, and then only it comes to the आपने ये import कहाँ से करनी है, क्या आपने assembly का plant लगाना है, या आप assembled lights import करके यहाँ पे बेचेंगे, या आप अपना brand कैसे establish. So how part comes a lot later. So I think idea conception में इसमें कतन कोई कबाहत नहीं है कि आप बिल्कुल wild out of the box ideas के बारे में सोचें. All great ideas. I mean, had anyone imagined very small thing as running a cab or a taxi, yeah, but without owning any of Yeah. those movable assets, right? So ये कितना wild idea था कि सिर्फ एक app के through you're going to
face the face of car rentals in the country. True, It's a true disruptive that. idea, right? So इसी तरह के ideas होते हैं जो कि disruption cause करते हैं and they're successful as well. Okay. Mhm. Yeah, noted. So Noted. great. Thank you very much, Salman. And once again, welcome to the show. Thank you. Thank you. You've spoken for this first time. We're very happy that you come about and speak. I'll encourage everyone to jump in here and get the 60. Yeah, I hope to do that more often from now on. Please So do, please do, please do. you guys और have ये to get used to it. spread the please, you must, yeah. And please spread the word around as well. There are many ACCA stakeholders around us who badly need to come in here and discuss this. Um, I made this announcement, I think, in the last session. Something very interesting happened. तो हम ओरिएंटेशन या लॉन्च इवेंट्स रन कर रहे थे. किसी मेंबर ने मेंशन किया इन द इंट्रोडक्शन कि मैं एक एसीसीए मेंबर हूँ और मुझे अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन who are holders of other qualifications, other professional accounting qualifications, उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा pushback मिल रहा है and I am not able to display or show off my talent in the organization. Another individual in the same group picked up on that. और आज जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह वेकेट हुई तो उन्होंने सबसे पहले जो जिस इंडिविजुअल के बारे में सोचा वो उसी इंडिविजुअल के बारे में सोचा जो वाज वेरी कीन ऑन शोइंग ऑफ टैलेंट. तो वो इधर से ही ओरिजिनेट हुआ है. नाउ बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली हेल्पिंग ईच अदर. एक हेल्प कर रही हैं टू फॉर द टैलेंट टू बी रिक्रूटेड और दूसरी हेल्प कर रही हैं बाय ऑफरिंग अ सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो आई थिंक मैंने ये एक्टिविटी आप लोगों के ग्रुप में भी देखी है, ग्रुप A+S व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग भी आइडियाज शेयर कर रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे हो. That's perfectly healthy, that's perfectly positive as long as it is within your community. I think इससे आप लोगों को सपोर्ट ऑफर होती है, इससे कभी किसी का नुकसान नहीं होते हुए मैंने देखा. ठीक है. So ACCNs, okay, yes, why not put ACCNs instead of them? I think हमें टैलेंट की कदर करनी है. ठीक है. So if you are in a decision making position, yes, give an equal opportunity to everyone and then let people win it through their talent. Yeah. So undue advantage we don't agree कि किसी को होना चाहिए. ठीक है. जो due advantage है वो हर एक को होना चाहिए. So that is what we propagate. But बहरहाल अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके गिर्द नजर आती है आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी किसी फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो दे आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स, दिस इज डेफिनेटली वन वे ऑफ सपोर्टिंग द कम्युनिटी. ठीक है जी. चलिए अब आई थिंक वी हैव डन एन एक्सीलेंट रीकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन. कुछ हमने कबार दिया और कुछ हमने एसएनडी लाइट्स का भी जिक्र किया. Let's take a namaz break for 10 minutes, and when we come back, we will then kick off with a video. Once again, another Shark Tank video. Interesting one. I think there's something wrong with Arun Saab's audio. So we'll be taking that break for 10 minutes. 7:10. We'll be back at 7:10 then, right? Yeah, yeah, Salman. That's what I said. 10 minutes break till 7:10, 7:11 now.
Okay, welcome back. Nizam just told me that towards the end, मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी. Apologies for that. Okay, so thank you, Nizam. Thank you for making that announcement about the namaz break. Can we have Sajid in the call now? And I must tell you that Sajid is traveling right now, Lahore to Islamabad, Islamabad to Peshawar, Peshawar to back to Islamabad, and he's just reached the hotel. You see, and look at the smile on his face. He's not tired. It's just a little, tie loosened up, and he's back with us. So that's the level of interest that Sajid himself has generated in the group, and he's now fallen trap into that interest as well. So thank you very much, Sajid. Thank you for being with us once again. And if you want to do your introduction about the clip that we're going to show them, over to you. And Sajid, thank you. Yeah, don't miss my mug. So finally, Finally. the branding as well. So Yeah. great. Guys, thank you very much for joining. And I think it's important milestone which we have achieved so far. Let me summarize the journey जहाँ से हमने शुरू किया था, and you have to really go back and review how much damage you have seen there yet. हमने शुरू किया था ओरिएंटेशन से, जहाँ पे हम एक माइंडसेट की बात कर रहे थे. हमने ग्रोथ माइंडसेट की बात की, हमने विनर एटीट्यूड की बात की, हमने एक ओरिएंटेशन के टाइम पे वी टॉक्ड अबाउट द जर्नी, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वेदर वो इंफॉर्मेशन ड्रिवन होता है या पैशन ड्रिवन होता है, बट इट टेक्स सम टाइम टू रीच टू द सर्टेन लाइफस्टाइल, और उसके बाद एक प्राइड की मूवमेंट आती है आपके पास. लेकिन उस टाइमलाइंस में आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट की बात हो रही होती है. फिर हमने क्वेश्चंस की बात की, व्हाट एंड व्हाई क्वेश्चंस सिग्निफिकेंटली वी टॉक्ड अबाउट. हमने गुफ्तगू की कि व्हाट कुछ क्वेश्चन जो हमें लाइफ में हमेशा अपने साथ रखने हैं, वो व्हाट एल्स है, सो व्हाट है, इज इट द बेस्ट आई कैन डू. I use that one, so I shared that some of the question, but I'm sure there are people who might have a different question, but they always have some questions which help के आपने जो चीजें validate करनी होती है. और वहां से उस जर्नी से हमने कुछ वीडियोस भी देखी, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी, उसमें कुछ हमने बिजनेस मॉडल कैनवस को डेवलप किया, कुछ हमने ऑनलाइन यहाँ पे लाइव एक्सरसाइजेस की, कुछ एक्सरसाइजेस आपने एज अ टीम एक्टिविटी की. आज हम इसको वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग टू अ क्लोजर, और लेकिन ये बिजनेस मॉडल कैनवस पे हम दोबारा एक दफा आ रहे होंगे. और अभी इसमें जो चीज मिसिंग है, which we will be doing at some point of time before the second one, is the pitch. आप एक रोल प्ले पे आएंगे जहां पे आपने ये पिच करनी होगी इन्वेस्टर्स को. बिजनेस मॉडल कैनवस अगेन just to focus, आपका कहाँ पे फोकस होना चाहिए. बिजनेस मॉडल कैनवस इज अ वन टूल, that's not the only tool. So there are other tools which are available. आप वो tools भी यूज कर सकते हैं, you can google it. लेकिन ये टूल एक जो है, हमने इसको इफेक्टिवली अगर हम यूज करें तो ये हमारे ज्यादातर सवालात जो है इसमें एड्रेस हो जाते हैं. बिजनेस मॉडल कैनवस को देखने के लिए जरूरी है कि आप वैल्यू प्रोपोजिशन को देखें और कस्टमर सेगमेंट को देखें. और कस्टमर सेगमेंट में जरूरी होता है कि आप कस्टमर सेगमेंट की एस्पिरेशंस, उसका साइज और इसको डिटरमिन करें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपने उसको किस चैनल से सर्व करना है एंड हाउ यू विल मेंटेन द रिलेशनशिप. और जब आप ये चीजें डिसाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या की एक्टिविटीज करनी है उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, उस चैनल को मैनेज करने के लिए. तो आपकी देयर इज अ सर्टेन एक्टिविटी व्हिच यू हैव टू डू, कि जिसमें आप कस्टमर एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं, अपसेल करते हैं. ये सारा कस्टमर रिलेशनशिप में आता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज आपने कैप्चर करनी है. जब आप एक्टिविटीज कैप्चर करते हैं तो अगली बात जो आती है वो पार्टनरशिप्स की आती है, कि आपको इन एक्टिविटीज को करने के लिए किस तरह की पार्टनरशिप चाहिए. डू यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ, आप अपने एम्प्लॉय बेस बनाना चाहते हैं, या आप कोलैबोरेशन में जाना चाहते हैं. फिर आप अपनी पूरी वैल्यू चेन में इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप पार्टनर्स लेके आ सकते हैं, रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ. और आप फोकस करें जो आपकी कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको इवॉल्व करने की, उसको डिलीवर करने की. और जब आप पार्टनरशिप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप आते हैं, बात करते हैं रिसोर्सेज की, और उसके बाद गुफ्तगू होती है कॉस्ट और रेवेन्यू की. सो जो की फोकस एरिया जो आपका शुरू में होता है वो दो एलिमेंट्स हैं बिजनेस मॉडल कैनवस के. एक, व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हु आर द कस्टमर. सो आपका वो कस्टमर सेगमेंट है क्या और कितना बड़ा है. अगर आप मैसेज के लिए काम करेंगे तो उसके लिए जो सेल्स चैनल होगा वो फर्क होगा, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव लोगों के लिए काम करेंगे तो वो एक डिफरेंट होगा. फरारी बेचने के लिए जो चैनल होगा वो सुजुकी बेचने वाला चैनल नहीं हो सकता. ठीक है, दोनों
वैल्यू प्रोपोजिशन फर्क है, उनकी कस्टमर सेगमेंटेशन फर्क है। ऑल्दो आप बात गाड़ी की कर रहे हैं और प्रैक्टिकली गाड़ी की फंडामेंटल वैल्यू प्रोपोजिशन वही रहती है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। यही वैल्यू प्रोपोजिशन फरारी भी देती है और सुजुकी भी देती है, लेकिन उसमें क्या चीज है जो डिफरेंशिएट करती है, जिसकी वजह से कस्टमर सेगमेंट और उसकी साइजिंग और चैनल एवरीथिंग गेट्स चेंज। सो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पे आई टेक अ ब्रेक एंड आई रिक्वेस्ट निजाम, हमारे पास आज 2 वीडियोस है जिसको हमने देखना है, और फिर आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन वीडियो पे पहली वीडियो देखने के बाद आपने उस पर कमेंट करना है। निजाम, मेरी से आपको सजेशन ये होगी कि वीडियो जब बिल्कुल एंड के करीब पहुंचे तो उसको बंद कर दीजिएगा और देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। Just short header. We have this handout, so we'll be playing 10A वाली वीडियो। So अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही, so you can download this, और मैंने WhatsApp में आपको handouts के लिंक भी शेयर किया, so you can download it from there as well.
Okay, so question for you, क्या देखा आपने? Okay, so it's a funny idea. What else? Self-confidence, no voice, so you can run it on your whatever device you are using. Just ideas. Yeah, I think that's a very good comment. Some disgusting idea. Ideas are ideas, so you never know कि किस तरह के ideas जो हैं वो really flourish कर जाते हैं. If there is a customer segment, there is a business. Ideas and confidence. I think Amna, I'll pick up on Amna Mahin's comment. Some very weird ideas displayed with a lot of confidence. अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ देखें ना तो आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, आप उनके साथ जैसे ही बैठते हैं ना तो वो आपको बहुत से आइडियाज देना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. लेकिन आप उसको थोड़ा सा प्रॉब करते हैं ना कि हाँ जी मतलब हम किस कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कस्टमर सेगमेंट कितना बड़ा है, एंड दैट्स वेयर इट डाई डाउन. क्योंकि वो आइडिया जो होता है ना दैट्स नॉट रियली वर्कड आउट. और हम एवरीडे बेसिस पे हमारी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है कि जो we call it the idea machines होते हैं, वो they will keep throwing the ideas but they will never execute those ideas. वो कभी भी उस पर खुद एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते. So और उसका फंडामेंटल रीजन ये होता है कि वो सिर्फ एक चीज सोच रहे होते हैं कि जो उन्होंने सोचा है दैट्स द बेस्ट. उन्होंने ना उसको वैलिडेट किया, ना उन्होंने सेगमेंटेशन की उसकी, ना अपने कस्टमर सेगमेंट के साइजेस की बात की. So these are the funny way to really showcase that the same जो sentiment exist करता है. So the whole purpose of showing you that there is, you will encounter people on an everyday life जहाँ पे वो आके they will be the idea machine और वो हर आइडिया को इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करेंगे कि एक दफा आप पे हिल जाएंगे कि मुझे क्यों नहीं ये आइडिया आया. लेकिन जैसे ही आप उसको व्हाट, व्हाई और व्हाट एल्स एंड सो व्हाट वाले क्वेश्चंस पे लेके जाएंगे या बिजनेस मॉडल के थॉट प्रोसेस पे, कस्टमर सेगमेंट, साइजिंग, वैल्यू प्रोपोजिशन, द प्रॉब्लम दैट द कस्टमर सेगमेंट इज फेसिंग और उसको आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन से किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा प्रॉब करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे सब्सटेंस नहीं है. सो सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है जब आप एक बिजनेस आइडिया की बात करते हैं. और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रियली लाइक आपने एक आइडिया को सब्सटेंस डेवलप करने के लिए आपको हफ्तों की रिसर्च चाहिए. जब आप थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू होता है, इज इट वर्थ और इजंट इट वर्थ. सो दैट्स द पॉइंट. सो द होल पॉइंट इज दैट आइडियाज जो उन्होंने प्रेजेंट किए बिजनेस मॉडल कैनवस पे आप कैप्चर करेंगे तो वो आइडिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर. एक में तो उसने बड़े फनी वे में बताया था कि इट कॉस्ट मी 30 एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 29. So you know these are the things which basically reflect कि what is the thought process. It's a funny way but I don't think कि आपने कभी मिस किया होगा कि आपके आसपास भी इस तरह के काफी लोग होंगे जो आपको, जिनको एटलीस्ट मैं अपनी लैंग्वेज में आइडिया मशीन कहता हूँ, एंड they never execute that. And most of the idea, अगर वो उसमें से 100 आइडियाज के बजाय एक आइडिया पे थोड़ा सा काम कर लें तो they have more capacity and contacts at the same time and resources to really deliver it. लेकिन वो उस आइडिया को कभी वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर सेगमेंटेशन और चैनल और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे इवैल्यूएट ही नहीं किया होता. उनके ये बॉक्सेस फिल ही नहीं हुए होते. और जब तक ये 4 बॉक्सेस आप प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करेंगे, आपके लिए एक्टिविटीज डिफाइन करना या पार्टनरशिप या रिसोर्सेज डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. सो पहले 4 बॉक्सेस आपके, पहला बॉक्स वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर सेगमेंट का है. क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए आप ये वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो इसके लिए पैसे देके बाय करेंगे. एवरीबडी विल लव द फ्री स्टफ बट पैसे देके कौन खरीदना चाहेगा और कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे देके खरीदना चाहेंगे, राइट? So Dani, you are an idea machine as well, but now I would suggest जब भी आप एक आइडिया की बात किसी दूसरे शख्स से करने लगे तो एक दफा उसको बिजनेस मॉडल कैनवस को इमेजिन कर लीजिएगा and try to fill those boxes hypothetically just in your imagination कि मैं किस बॉक्स में क्या चीज डाल रहा हूँ. बट जो बॉक्स है वो कॉस्ट और रेवेन्यू वाला नहीं है. Don't try to evaluate that
from a cost and revenue perspective, start with the customer segment, value proposition, distribution channel, and CRM. So these are the 4 boxes you need to fill mentally. So जिस तरह हम एक mental maths की बात करते थे, इसी तरह idea evaluation करने के लिए हम इन 4 boxes को use करते हैं. So thank you. I think decent comment. Most of the people pick up on that. So great. Now we will go for another video. और इस वीडियो को आपने बहुत गौर से देखते हैं. You have to really come up के इसमें why they managed to close a deal. ठीक है. So आपने उसको evaluate करना है. जो वीडियो अभी निजाम आपके लिए रन करेंगे कि we are talking about a situation जो कि in ordinary sense जब आप उस situation में जाएंगे तो you will not buy the business, but in this particular case the person managed to sell the business, and you have to come up why he got a good deal out of it. So over to you, Nizam. Second video.
Thank you, Nizam. So the question, why did they manage to sell it? अगर आपको ये बिजनेस खरीदना हो तो आप are you willing to put your money there? So Mohsin said no. Okay. Murtaza need this, please summarize the video. So we will come back. I'm not gonna do it for you. So Murtaza, you might have to go back and view that. Mubin Akhtar say no. So why then the sharks, who are very like sharp business people, and they are still buying it? What they see, what you can't see right now. उनको क्या ऐसी चीज नजर आ रही है उसमें? Big margin, brand name, brand, big margin, brand name. A value proposition for the product, I think they discounted that on at the very beginning, the brand name. So why, that's bringing me to a very interesting question. Cost is low and margin is high. They are not interested in a product. उन्होंने बड़ा clearly कहा था कि हम इस product को तो वैसे ही discard कर देंगे. So the product is not the question here. It's the brand. So the people who have picked up on that one, so it's a brand which is the key question. Why somebody is willing to pay high or a premium on just a name, a brand name? Yeah, so goodwill of the brand, what does it mean? Goodwill of the brand, trademark register. What does the goodwill of the brand mean? Very good thing you brought out. What is the goodwill of the brand? Why the brand will have a goodwill? So if you can raise your hand, and I can invite you to, if you allow me to, I can invite you on to reply that one. Okay. So Murtaza, you can unmute yourself. Ji Murtaza, please go ahead. Okay, Murtaza, you can on a self mute now. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ji, sir. So what does that goodwill mean? I think they are very interested in brand of that the thing that the healing powers or the I think element. let's not get in the product, because product तो उन्होंने kill कर दी. They already came up with that कि product में तो हम interested ही नहीं है. So Okay. product is not there. They were interested in a brand. Why somebody will be interested in a brand? I think maybe to gain control in the future. What does brand mean? आप क्यों प्रीमियम पे करते हैं किसी ब्रांड नेम पे? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. Because there is a wide recognition. Yeah, because the customer can recognize and can relate to that. अगर मैं उसको उस नाम से कोई चीज बेचूंगा, because due to wider recognition of customers. Yeah, exactly. So wider recognition of the customer association with it. So these are the things which basically help you really sell something which may not be directly related with the same product, just where वो brand develop हुआ.
Can you give me Yeah. some names? And आपने brand जो historically देखे हैं, they were very big brands, and you don't see those products anymore. Yeah, like Milkolu biscuit. बिल्कुल. Nokia, HTC, Hitachi, Yeah. no, right? So ये सारे brand, और अगर आज भी कोई product इन brand के नाम के साथ आएगी तो people will definitely look at it rather than कि मैं एक brand या एक product launch कर रहा हूँ under the brand जो बिल्कुल unknown हो, right? So अगर मैं Hitachi के नाम से कोई चीज लेके आऊंगा तो there is a high probability the people will try to test it because they were familiar with Hitachi and there is a certain customer base जिसने उसको पहले experience किया हुआ है, तो मेरे लिए शायद सेल करना आसान होगा Hitachi के नाम से rather than I come up with any new name. Right? But sir, but sir, can someone take the brand name which is previously existed? Yeah, you can. अभी अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में एक ट्रांजैक्शन हुई थी जिसमें सिंगर जो है उसने अपना right to use that name बेचा था. Oh, yeah, So, right to use name. Yeah, that's so a right thing. to use name. Yeah, it's called normally इसका नाम IRU भी होता है. It's a like irrevocable right to use type की चीज होती है. Limited time के लिए भी होता है, over the period भी होता है, तो वो right to use brand बिल्कुल आप ले सकते हैं. Sometimes you buy a entity, आपको पता होता है कि कंपनी सारी खत्म हो गई है, बिजनेस उनका टोटली कोलैप्स कर गया हुआ है, लेकिन ये एंटिटी एग्जिस्ट करती है और ब्रांड नेम जो है वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है. सो इफ यू बाय दैट एंटिटी तो आपको जो चीज उसमें मिलती है वो आईपी मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है, राइट? सो Okay, पीपल डू बाय दैट. thank you, sir. जी. So Mubin Akhtar, you want to share something? Mubin. Hello, can you listen me? जी जी, I can. Hello. जी मुबीन, हम आपको सुन सकते हैं. मैं गुडविल के मतलब यही बताना चाहता हूँ कि गुडविल बेसिकली ब्रांड की रिकग्निशन है इन द आइज ऑफ कस्टमर, और ये ओवर द ईयर डेवलप होती है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उनका कस्टमर बेस जो उनकी बनी है, कस्टमर का ट्रस्ट है प्रोडक्ट पे, तो ये सारी चीज़ें, और कस्टमर को कैसे डील करते हैं, कस्टमर की आफ्टर सेल सर्विसेज, और उनकी जो नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें ब्रांड नेम बनाने में काफ़ी मैटर करती हैं. और यही जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो जो प्रीमियम जो बायर्स होते हैं वो प्रीमियम पे करने के लिए इन सब चीज़ों की वजह से रेडी होते हैं. ओके, तो अब मेरा सवाल है आप सबसे, एंड मुबिन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. अब मेरा सवाल है आप सबसे कि एक हम बात करते हैं नॉर्मली जब हम बिजनेस मॉडल बना रहे होते हैं तो हमारे, अगर आपने अक्सर बिजनेस मॉडल देखा हो तो उसमें उसका आगाज ये होता है कि मैं अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे सेल करना चाहूंगा. ठीक है, सो ये हमारा एक जनरल जो बिजनेस मॉडल्स हमने देखे स्टूडेंट साइड से भी, मेंबर साइड से, सो उसमें दो कंपोनेंट आ रहे थे, बेहतर क्वालिटी और लो कॉस्ट. अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आपने बेहतर क्वालिटी तो देनी है लेकिन मार्केट से प्रीमियम चार्ज करना है. अगर आप वही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी सिमिलर प्रोडक्ट है, एग्जिस्ट करती है, तो आपने उस पर प्रीमियम चार्ज करना है. मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको. निजाम, कैन यू हियर मी? Because I just see that Abdul Wahab is saying no voice. Sir, your audio is loud and clear. Okay, thanks. So फिर वहाब को बताना पड़ेगा, he might need to reconnect. So अब हम आते हैं, इस सवाल ये है, and I'll use a very standard example जो हम लोग मेरा ख्याल है everybody uses that. How much you are willing to pay for a white shirt? आप एक standard dress shirt जो white shirt, I think everybody who goes to office they normally own one. So आप कितना willing है, कितनी amount you are willing to pay for a white shirt? Not more than 2,000, 1,900, 3,000, 1,500 to 2,000, 5,000, 1,000, 15 to 2,000 to 2,000, 2,000, 10,000, 5,000 plus.
15 is more than enough. 500 to 2500, 3500 to 5000. So even within the same group you can see that there is a variation. अगर हम एक white shirt की बात कर रहे हैं, so there are people who are willing to pay 5,000 rupees for a shirt or even 10,000 rupees for a shirt, and then there are people who are willing to pay 500. So अगर आपने प्रीमियम चार्ज करना है तो इसका पहला सवाल तो ये आएगा कि आपकी वो कस्टमर बेस कौन सी है जो उस प्रीमियम को पे करने के लिए तैयार है और क्यों. And just give me some very fundamental thing. जो एवरेज शर्ट आप मार्केट में 1500 से 5000 रुपए के दरमियान खरीदते हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट 1000 रुपए ही होती है, फ्रॉम अ प्रोडक्शन, फ्रॉम द क्लॉथ एंड फ्रॉम उसकी एक्सेसरीज और स्टिचिंग, पुट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द पैकिंग, जो आपकी स्टैंडर्ड पैकिंग है, वी आर नॉट टॉकिंग फैंसी पैकिंग. सो वो बिकती मार्केट में 1000 रुपए कॉस्ट करने वाली शर्ट जो है, एवरेज कॉस्ट उसकी 1000 रुपए है एक व्हाइट शर्ट की. वही शर्ट 1500 की भी बिकती है और वही शर्ट आप 5000 में भी खरीदते हैं. सो दैट्स द एवरेज साइज और एवरेज रेंज यू आर लुकिंग एट. उसमें जो फर्क होता है वो डिफरेंट ब्रांड नेम्स लिखे होते हैं. सो व्हाई अ ब्रांड इज एबल टू चार्ज प्रीमियम, उस 1000 रुपए वाली चीज को 5000 में बेच लेते हैं, एंड देन देयर इज समवन एल्स जिसके पास वो ब्रांड नेम नहीं है, वो 1000 रुपए वाली चीज 1500 रुपए में मैक्सिमम बेच पाता है. Trust of people, how they build the brand. By the way, brand building का प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ आपने एक बिजनेस जो है उसकी की एक्टिविटी लिखेंगे ब्रांड बिल्डिंग की, तो व्हाट यू विल डू, आप कैसे बिल्ड करेंगे ब्रांड? मार्केटिंग इज अ कम्युनिकेशन टूल. सो या यू क्रिएट अवेयरनेस, बट हाउ यू बिल्ड ब्रांड? अच्छा, customer satisfaction is a very interesting phenomena. Amar, customer satisfaction is not based on the product, it's the perception of the value a customer derived by the consuming a product. So वो जो perception है ना, वो ज्यादा important होती है satisfaction से. So वो satisfaction customer की इसलिए नहीं होती कि वो product consume कर रहा है, वो जो उसकी perceived value होती है ना, that's basically create that kind of satisfaction. So I think there are a lot of good answers. आपके पास definitely आपको trust build करना है, आपने अच्छा experience देना है, आपने कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, आपने उसको अवेयरनेस भी जनरेट करनी है, आपने एक ब्रांड रिकॉल भी जनरेट करनी है. सो अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, उसकी रिकॉल नहीं जनरेट करते, ओवर द पीरियड पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग इट. सो आपको हमेशा ब्रांड के जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको हाईलाइट करने पड़ते हैं कि व्हाई दैट ब्रांड एग्जिस्ट. एक ब्रांड में फॉर एग्जांपल हम व्हाइट शर्ट की बात करें तो वो कंपैरिजन करें जहाँ पे वो एक सुजुकी वर्सेस फरारी की बात हो रही हो, कि आप अगर एक इस ब्रांड की व्हाइट शर्ट ले रहे हैं तो इट्स लाइक अ फरारी, एंड देन हाउ दे रियली क्रिएट दैट इमेज और परसेप्शन दैट कि ये वाले ब्रांड की व्हाइट शर्ट तो फरारी है, लेकिन अगर आप ये नहीं ले रहे तो बाकी सारी चीजें जो है वो सुजुकी है. सो उसका प्राइस डिफरेंशियल यू कैन वेल इमेजिन. फरारी और सुजुकी का प्राइस डिफरेंशियल आप अच्छे तरीके से जानते हैं. तो दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर द सेम प्रोडक्ट. और अगेन सुजुकी और फरारी की मैं एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूँ क्योंकि दोनों का फंडामेंटल काम ये है कि उन्होंने एक जगह से आपको दूसरी जगह तक मूव करना है, लेकिन फरारी जो है वो इट्स डिफरेंट. उसमें जो प्रीमियम आप सुजुकी की सारी जितनी भी वो वेरिएंट्स हैं उनको पिक कर लें और एक लोअर एंड की फरारी की भी बात करेंगे तो उसकी प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी परसीव्ड वैल्यू ऑफ ओनरशिप जो है वो बहुत ज्यादा है. सो ब्रांड बिल्डिंग, तीन चीजें होती हैं ब्रांड बिल्डिंग के लिए. व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ब्रांड बिल्डिंग, so you are looking at the three things. Number one, definitely confidence. The people really trust कि आपने जो चीज claim की है वो चीज है. So confidence is the first thing. The second part is connection. जो आप customer के साथ उसका connection share करते हैं. For example, if somebody is owning a shirt of brand A versus brand B, why there is a differentiation? So brand A own करने वाला जो है, why they feel more pride there compared to somebody who does not own brand A but own a similar stuff. So वो जो ऑनरशिप की वैल्यू है ना, वो परसेप्शन, वो कनेक्शन, आपको इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है
कस्टमर के लिए टू मेक हिम एक्ट और मेक हर एक्ट. सो वो जो कॉल टू एक्शन है ना, वो आप उसकी परसेप्शन और इमोशंस पे लेके आते हैं, नॉट बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट फीचर्स. एंड द लास्ट पार्ट इज द कन्वीनियंस. अगर मैंने एक अच्छी शर्ट लेनी है और उसके लिए मुझे 3 घंटे लगाने पड़ते हैं किसी एक शॉप में, वर्सेस मुझे पता है कि मैं एक ऐसी शॉप में, ब्रांडेड शॉप में जा रहा हूँ, टाई एंड शर्ट में मैं चला गया और मैंने जाके वहां से एक व्हाइट शर्ट पिक की. जो व्हाइट शर्ट मैंने पिक की है, मुझे पता है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ वैल्यू फॉर आउट ऑफ दिस वन. वो 3000 की थी, वो 5 की थी, वो 15 की थी, बट आई नो व्हाट कैटेगरी आई एम पिकिंग अप और उसके लिए मेरे लिए क्या वैल्यू है. लेकिन मुझे वो शर्ट ढूंढने के लिए 10 जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा. सो दिस इज अ की डिफरेंस. आपका कॉन्फिडेंस दैट द प्रोडक्ट व्हिच यू आर गोइंग टू ब्रिंग इज राइट, connection, and then the convenience. Or the more you generate that experience consistently, the more people are willing to put a premium, क्योंकि आप उनका टाइम बचा रहे हैं, आप उनका जो डाउट्स होते हैं कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए, मुझे गलत चीज ना मिल जाए, आप उससे उनको निकाल रहे हैं और आप उनको वो चीज जो है वो इजीली अवेलेबल कर रहे हैं. उनको वो चीज ढूंढने के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ता. दे कैन गो ऑनलाइन, दे कैन गो टू अ डेजिग्नेटेड शॉप एंड दे कैन पिक दैट अप. सो आपने, और उसमें आपने उनके लिए एक कनेक्शन जनरेट किया हुआ है कि अगर इट्स शर्ट एंड टाई की अगर एक शर्ट को लेके चल रहा है, तो दैट्स अ गुड क्वालिटी एंड आई ओन समथिंग. इफ यू गो फॉर द मोर प्रीमियम, यू कैन स्टिल गो फॉर दैट. इसी तरह जब आपने किसी को गिफ्ट देना होता है, तो उस वक्त इफ यू आर पिकिंग अप द सेम शर्ट, अदर पर्सन कैन आल्सो रिकॉग्नाइज एंड द वैल्यू कि आपने उसको एक ब्रांड की शर्ट दी है, एंड दे आर नॉट वरीड कि चीज अच्छी थी या बुरी थी. आपको देते हुए मसला नहीं होता, उसको एक्सेप्ट करते हुए मसला नहीं होता. जनरल इमोशंस, जनरल बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं. डज इट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट? कॉन्फिडेंस कि आपकी प्रोडक्ट का सही होना जरूरी है, वो फंडामेंटल है. आपका कनेक्शन, और कनेक्शन आप किस तरह शेयर करते हैं? आप मार्केट करते हैं, आप इमोटिव मार्केटिंग में चले जाते हैं, आप एंगेज होते हैं कस्टमर के साथ, यू हेल्प देम एक्सपीरियंस दैट. Or the last thing, convenience. If they decide to buy, it's easy for them to buy. So उनको एक बड़ा मुश्किल से सेल्स प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता. ठीक है. सो आपके लिए कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, एंड कनेक्शन इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मार्केटिंग जो आप उसमें कर रहे होते हैं, मैसेजिंग, एक्सपीरियंसेस, आपकी शॉप का एम्बियंस तक उसके कनेक्शन से होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एडवेंचरस क्लोथिंग लाइन में आप हैं, तो और आप उसको ऐसी शॉप में ले जाएंगे जो उस एडवेंचर को हाईलाइट नहीं कर पा रही, तो वो थीम आपका उस शॉप का काम नहीं करेगा. या इवन आप ऑनलाइन बेच रहे हैं और आप एक ऐसा क्लोथिंग पीस बेच रहे हैं जो एडवेंचर्स के लिए है, तो वो जब तक आपकी वो साइट और वो एम्बियंस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो कनेक्शन नहीं जनरेट होगा, वो कॉल टू एक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी. अगर आप स्पोर्ट्स वेयर बेच रहे हैं और आपने अपना एम्बियंस स्पोर्ट्स के लिहाज से अलाइन नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली वो जो कॉल टू एक्शन है वो ट्रिगर नहीं होती. तो कनेक्शन जो है, everywhere they are seeing that there has to be a connection. वो आपका मार्केटिंग मैसेज हो, या वो आपका एक एम्बियंस फिजिकल एक्सपीरियंस हो, या आपका डिजिटल स्टोर हो, वो एम्बियंस इज इंपॉर्टेंट. इसी तरह अगर आप ड्रेस शर्ट बेच रहे हैं और वहां पे सारे जो थीम लगा हुआ है वो जंगल का लगा हुआ है, तो बिलीव मी, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ कनेक्शन. सो अगर आप ड्रेस शर्ट बेच रहे हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग some environment जो कि ऑफिस को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, स्मार्ट पीपल हु आर वेयरिंग दैट, एंड यू लिंक इट विद द सक्सेस. सो आप एक कनेक्शन शेयर डेवलप कर देते हैं, हाइपोथेटिकल सबलिमिनल मैसेज ले आते हैं कि मेरी व्हाइट शर्ट पहनने से इंटरव्यू में हर बंदा कामयाब हो जाता है. ये वाली व्हाइट शर्ट पहनने से इफ यू आर गोइंग फॉर अ बोर्ड मीटिंग, यू विल गेट अप्रूवल इमीडिएटली. यू नो, आपने बहुत से मैसेजेस और ये देखे होंगे कि एक बंदे ने शर्ट पहनी है और उसने जो भी काम करने के लिए गया, तो वो सक्सेस और शर्ट का एक लिंक जनरेट कर देते हैं. सो दैट्स, दे आर प्लेइंग ऑन अ फियर कि अगर शर्ट होगी तो सक्सेस होगी. दैट्स द फियर दे आर ट्राइंग टू डेवलप. राइट, शर्ट होगी तो सक्सेस होगी. ये शर्ट जो है ये सक्सेस को लीड करती है. सो दिस इज द काइंड ऑफ कनेक्शंस दे आर ड्राइविंग, एंड दैट्स वेयर द ब्रांड्स आर बीइंग बिल्ड. और अगर 2-4 लोगों के एक्सपीरियंसेस इस तरह के होंगे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज कि आप कंसिस्टेंट मैसेज जो है वो उसका कॉन्फिडेंस चेंज कर रहा है, तो देन दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम. अगेन गो बैक टू द फंडामेंटल. ये वही शर्ट थी जो 1000 रुपए में बनी थी, कोई उसको 1500 में बेच रहा था और कोई 5000 में बेच रहा था. जो 5000 में बेच रहा है उसकी 1000 रुपए की शर्ट है और वो 500,000 रुपए की एक्सपीरियंस जनरेट कर रहा है. सो देयर इज अ बेस लाइन और उसके ऊपर एक फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रही है टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट. सो अगेन बेसलाइन वही है, 1000 रुपए की शर्ट, उसने 1000 रुपए का एम्बियंस, एक्सपीरियंस, कनेक्शन, मार्केटिंग, उसने वो पूरा जनरेट किया, एंड देन दे आर एबल टू चार्ज 3000 rupees as a profit or as a margin on that, just because of that particular level of investment they have made there, right?
So my only point which I'm trying to build, जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, लेकिन उस कॉस्ट का रिटर्न बहुत जरूरी है। अगर आप वो कॉस्ट राइट साइड पे राइट टाइम पे इंकर कर रहे हैं तो फिर आपने उसका एक प्रीमियम भी चार्ज करना है। डज इट मेक सेंस? अभी तक गुफ्तगू आपको यहां तक समझ आ रही है? ग्रेट, ओके। Now I have got a question for you, particularly the young students here. What price you are going to put on your services जब आप client के पास जाएंगे या employer के पास जाएंगे, and how you will determine that you are getting a right kind of premium? How you are going to put a premium on your own self? अपनी services, अपने salary level को आप किस तरह negotiate करेंगे? How you can sell yourself as a brand? You want to be a me too product in the market, or you want to be a brand, a personal brand which can charge premium? So what you want to be, a brand or a me too product? क्योंकि अगर आप मार्केट में अपने आप को सेल करने जाते हैं एज अ मी टू प्रोडक्ट, सो आप उसको कह रहे होते हैं कि मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं एट अ लो कॉस्ट, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि देयर इज समबडी एल्स who can sell their services at a cost lower than you, और आप फारिग हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन लो कॉस्ट बनाई थी, which is not working anymore. अगर वहां पे आप अपने आप को एज अ ब्रांड सेल कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है the people should have a right kind of experience, and that experience should lead them to pay a premium around it, right? So अगर आपने प्रीमियम चार्ज करना है तो देन यू हैव टू कैरी योरसेल्फ, और एवरी एनकाउंटर यू आर हैविंग इन जर्नल इन योर नेटवर्क, दैट शुड रिफ्लेक्ट दैट ब्रांड। आपका पहनने, ओढ़ने, चलने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका थॉट प्रोसेस, आपकी गुफ्तगू, दैट शुड रिफ्लेक्ट कि आप एक ब्रांड है। यू आर नॉट अ मी टू प्रोडक्ट हु कैन प्रोवाइड सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट. Saad Ajlal is also talking about the voice issue. Okay now. So from a brand perspective, फिर आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे हमने पहले बात की थी कि वही 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, जब आपने प्रीमियम चार्ज करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट फर्दर 500 to 1000 रुपीज टू चार्ज दैट काइंड ऑफ प्रीमियम। सो अगर आप यहाँ पे आए हैं, आपने ACCA किया, आपने एग्जाम्स किया, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, आपने EPSM कंप्लीट किया, now unless until you reflect, right, unless until you really reflect कि आप वो डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं और वो चीज आपकी गुफ्तगू में, आपकी चाल ढाल में, आप हाउ यू कैरी योरसेल्फ, वो एक पूरे पैकेज डील होती है और वहां पे आप प्रीमियम चार्ज करते हैं। अगर आप जस्ट मी टू प्रोडक्ट हैं तो बिलीव मी आप कॉस्ट पे प्ले कर रहे हैं, और अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, आप ब्रांड हैं, तो देन यू हैव ऑल द लिबर्टी टू नेगोशिएट बेटर। बट उसके लिए ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एज्यूम करें कि ब्रांड है। पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू एज अ ब्रांड, एंड इफ पीपल हैव टू रिकॉग्नाइज यू एज अ ब्रांड, सो वो आपकी 30 सेकंड के इंट्रोडक्शन से लेके आपकी एवरी कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन व्हिच इज हैपनिंग देयर, that should reflect that you are better than somebody else, और लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, they should have a confidence, you should be able to connect with them, and then it's convenient to work with you. You are not someone जिसकी ईगो इतनी हाई हो कि उसके साथ काम ना कर सके, किया जा सके, या थॉट प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो, या वो कनेक्शन ही ना जनरेट, रेलेवेंस ही ना जनरेट कर पाए बिजनेस के साथ, कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं और जो आपके कस्टमर की गुफ्तगू है उसके दरमियान गैप आ जाए, एंड दे कैन नॉट बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, वो डाउट्स हो उनके आप पे कि द क्वालिटी यू आर गोइंग टू डिलीवर, वो उसके ऊपर अगर उन्होंने डाउट जनरेट कर दिया तो आप उनका कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस, कनेक्शन फॉर यू इज रेलेवेंस, एंड देन कन्वीनियंस, आपके साथ बात करना, पीपल शुड हैव फन while talking to you, they should feel good about it, and that's what the brand is all about. Exercise आपके लिए ये है अब next. I hope that makes sense now. Okay, Mohsin want to talk about something. Mohsin, I have unmuted you. Please go ahead.
अस्सलामुअलैकुम सर। ये अभी ओवरऑल इसके ऊपर बात करनी है, जैसे अभी आपने बात करी ना ब्रांड रिकग्निशन के ऊपर। अब हमने अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है और सामने वाले ने भी ब्रांड तस्वुर करना है, लेकिन सर इन दी एंड जहाँ हम जाते हैं, अगर हम खुद को ब्रांड रिप्रेजेंट कर भी दें तो हम नहीं, हमारे साथ वाला या हमारे बराबर वाला या कोई और वो कम पैसों में काम करने के लिए राजी हो जाता है। सर एक मसला ये भी तो आता है ना, एम्प्लॉयर ने तो काम कराना है मिसाल के तौर के ऊपर। अब मैं बात कर रहा हूँ एक एंट्री लेवल से असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए, वो सीधे सीधे देखता है ये आता है ये आता है। इवन दो मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री है, वो उसने भी एंड में आके क्या कहा, कोई मसला नहीं, क्या हुआ 3 महीने लगेंगे इसको ट्रेन कर लेंगे और ये हमें कम कॉस्ट पे पड़ेगा, ये ज्यादा का पड़ेगा। अब इसके अंदर कहाँ से हम अपना वो कनेक्शन उसके साथ बनाए कि ब्रांड वाला, बस यही सवाल है। Anybody else who want to reply that one? I'm not going to reply Mohsin unless until somebody else comes up. Mohsin ने एक सवाल उठाया, anybody else can reply that. So Mohsin, you can see कि बहुत से हाथ खड़े हो गए हैं। अर्शिया, okay, अर्शिया मैंने आपको अनम्यूट किया है and you want to share something? आप मोहसिन की सवाल का जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अर्शिया, आप मोहसिन का आपने सवाल सुना? जी सर, मैंने सुना। So आप उसका जवाब देना चाहेंगे? To answer in the way that आप sure sir। जी जी। हमें एक वीडियो आपने दिखाई थी कासिम अली शाह की, उसमें उन्होंने हमें क्वाड्रेंट्स दिखाए थे, लाइक बिजनेसमैन एक मेंटालिटी होती है और एक लीडरशिप होती है। तो जो बिजनेसमैन होता है या जो होते हैं लाइक we call them in the second quadrant, जो खुद अपना बिजनेस बनाते हैं, I just forgot the name, self-employed जो होते हैं, they usually do not prefer कि वो हाई सैलरीज पे करें या अपने जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो उनको इतना ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते। इंस्टेड जो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो अपने वो खुद भी ग्रो करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और उनको ग्रो करना देखना भी चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट द मेंटालिटी। आप क्या सोचते हैं या कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी? Thank you, Arshia. Thank you for that. And if I can request Ehsan Rashid, if you want to reply Mohsin's comment. Ehsan, okay, Ehsan is not there. Faisal Mohammed. Oh, Ehsan is there. Ehsan, please go ahead. फैसल, एहसन के बाद हम आपकी तरफ आ रहे हैं, प्लीज एहसन जो है। मोहसिन का सवाल ये है कि अगर मार्केट में ज्यादा लोग 500 की चीज लेने वाले हैं और आप अपने आप को 5000 की प्रोडक्ट तस्वुर कर रहे हैं, तो व्हाई समबडी हैज टू सेल और पे यू फॉर दैट? अभी तक हम नहीं, ऐसा हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, ऑल्दो आप अनम्यूट हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, फैसल, इफ यू कैन कम अप, फैसल मोहम्मद, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल। जी जी सर, जो मोहसिन ने सवाल किया उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट एन आवर ओन इमेज फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, यानी हमें एम्प्लॉयर के सामने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करना है कि वी आर बीइंग डिफरेंट एंड वी हैव स्किल्स, दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग प्रीमियर और डिमांडिंग हाई सैलरी. We should portray ourselves in such a way that we are different from other peoples who are charging low and we deserve this salary. We should portray ourselves in that way. Thank you, Faisal. I'll not use the word portray. Portray basically is basically refer to that कि आप पे ये है नहीं लेकिन आप portray कर रहे हैं. I would use the word demonstrate. तो आपको वो demonstrate करता है वहाँ पे कि the value you are putting on a table
is higher than the money you are asking for, right? Yeah, So yes, आपको ये proper sales conversation होती है practically जब आप negotiate कर रहे होते हैं। और जी, इसमें अगेन ब्रांड के हवाले से मैं कुछ चीजें आपको और हाईलाइट कर दूं। बहुत दफा एक नया ब्रांड मार्केट में आता है जिसका लोगों को पता नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस even if you are in a scenario जहां पे आपको initial stage पे you have to pick up something which is low, you have to clearly demonstrate that कि आप अगर इस सैलरी पे स्टार्ट ले रहे हैं, this is not where you want to stay, you will come back and you will renegotiate in 3 to 6 months, and you will renegotiate because you feel and you are confident the value you are going to deliver is way higher. So you give them the brand experience. If they don't have a brand experience, if they don't know you through your network, अभी तक वो आपको as a brand नहीं जानते, तो आप उनको एक brand experience generate करते हैं। लेकिन again बड़ा अच्छा एक यहाँ पे उन्होंने I think there was a very good answer that you have to look at the right kind of segment. So Murtaza is roti कपड़ा और मकान तक सोचो, ज्यादा मत सोचो। These are the choices. ये तो मैं day one से आपको कहता हूँ कि these are the choices you really pick up, and those all choices are right, but you have to understand the consequence, and then you should be living with the consequence of that. So I'll try to invite Mohammed Safir in a conversation now. Ji Safir, you can unmute yourself. हेलो जी सफीर। सफीर प्लीज गो अहेड, हम आपको सुन सक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी प्लीज गो अहेड। सर कैन यू हियर मी? जी वी कैन। अच्छा सर, मैं तो ये कहता हूँ उसके जवाब में कि जिस तरह ब्रांड की बात हो रही थी कि जब ब्रांड की बात होती है हर चीज़ ब्रांड को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल फर्म में या कंपनी में जाते हैं जो कि ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर रहा, तो वो आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के बावजूद भी आपको हाई पे नहीं करेगा। तो जैसे किसी ने कमेंट भी किया था, आपको सेक्टर देखना है, राइट सेक्टर चूज करना है जो ब्रांड पे विलिंग हो पे करने के लिए। बिल्कुल सही सफीर, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक इसमें सफीर आई जस्ट बिल्ड ऑन दैट। हमने शुरू में बात की थी कि ब्रांड जब आप बिल्ड करते हैं तो पीपल नीड टू नो अबाउट यू एज वेल। सो आपकी वो जो नेटवर्किंग होती है व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द, अगर मैं आप ACCA की लैंग्वेज में बात करूं कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोडक्शन प्रोसेस, जब आप एग्जाम्स दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, आप EPSM कर रहे हैं, तो ये जो 4-5 साल आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसमें क्या उस नेटवर्क ने आपको एज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है? और बहुत से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि बिग 4 से अगर आप आ रहे हैं तो आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिलती है और वहां से आप स्टार्ट लेते हैं। मैं खुद एक ऐसी एग्जांपल हूँ कि एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने स्टार्ट किया था, एंड वन ऑफ अ मल्टीनेशनल वाज वेटिंग फॉर मी टू रियली हायर मी। उन्होंने 6 माह इंतजार किया था मेरा। दे वर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं जल्दी आ जाऊं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं खत्म हुई थी, तो आई हैव टू कंप्लीट माय ट्रेनिंग, गेट द मेंबरशिप एंड देन आई हैव टू जॉइन। सो लेकिन उसमें था क्या कि उन 3-4 सालों में दे रियली रिकॉग्नाइज कि इस बंदे के पास जो स्किल है वो मार्केट में रेयर है। और जो कन्वर्सेशन इसकी है, मैं अर्ली 90s की बात करूं जब कोई लोग SAP को जानते भी नहीं थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द BPR, वी वर टॉकिंग अबाउट मर्जर एक्विजिशन, वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक प्रॉपर मुतारबा के नए मॉडल्स, नई प्रोडक्ट्स की बात होती थी। तो दैट्स वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग ब्रांड बाय थ्रू योर नेटवर्क। So then the people who can afford the brand, they will come and buy you. लेकिन अगर आपने वो 4 साल में वो एफर्ट नहीं की, तो अभी आपका ब्रांड नहीं बिल्ड हुआ। सिर्फ आपका ख्याल है यू आर अ ब्रांड। ब्रांड बिल्ड होता है जब दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके नेटवर्क से वो रेफरेंसेस निकलते हैं, राइट? एंड देन यू गो एंड वर्क इन अ राइट काइंड ऑफ सेगमेंट, जो अभी आपने बात की। नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड द ब्रांड। If you are a brand, you have to go for the right segment as well, and you have to prove that you have a value for it.
और वो प्रूव आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप या तो उनके साथ काम करें या आपके नेटवर्क से आपकी रेपुटेशन उन तक पहुंचे. So again it's a matter of choice. How you will generate that experience कि आपका वो brand बना. So thank you very much Safir for that. और सर आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है. I have gone through that और बहुत से एम्प्लॉयर्स वापस आते हैं इस चीज के ऊपर. Initially they hire somebody on a very like low cost, just on a cost driven होते हैं, value driven नहीं होते. और कुछ अरसे बाद उन्हें अंदाजा होता है कि वो जो 3 माह का एफर्ट थी, चाहे उसको ट्रेन करने की या उसका वैल्यू ड्रिवन करने की, वो 3 माह जाया हो गए. एंड नाउ दे हैव टू गो आउट एंड हायर समबडी एल्स either to support that individual or to replace that individual. और ये बड़ा कॉमन सिनेरियो. और they have to live with the consequences of their decision and they accept the low quality, जो कि अलग बिजनेस रिस्क बन जाता है. Marketing, sales and if you are a brand, then you have to market yourself. ये एक सेल्स ट्रांजैक्शन है. जो नेगोशिएशन है सैलरी की या फी की with the client, it's a sales transaction. You have to be a brand, you have to negotiate well, और आपने अपनी मार्केटिंग करनी है. अगर आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते तो बिलीव में कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए. सो अगर आपने ब्रांड के तौर पे बिकना है तो देन द मार्केटिंग स्किल इज अ मस्ट, जिसमें प्रेजेंटेशन है, आर्टिकुलेशन है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, कमर्शियल एक्यूमेन है, एवरीथिंग इन EPSM. अगर हम बात करें जो एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल के जो 8-9 कंपोनेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे इफ यू विल पुट टुगेदर, सो दैट आर द प्रोफेशनल स्किल्स which you need to demonstrate to become a brand. आपके पास theoretical knowledge सारा होता है. PER के दौरान आपने performance objectives की बात करनी है. 22 performance objective है, you have to pick 9, but whatever the objectives you pick, you have to be the best in that. So आपका वो सवाल, why you are picking it, what you gonna deliver, and so what, is it the best you can do? All those questions should apply to those performance objectives. और उसकी डिलीवरी आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है. एंड दैट्स योर सुपरवाइजर, द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग, वो सारे के सारे आपके नेटवर्क में आपकी ब्रांडिंग करना शुरू कर देते हैं. एंड एट द सेम टाइम यू स्टार्ट कैरिंग योरसेल्फ इन अ स्टाइल, और आप एक पूरी अपना एक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं व्हिच अपीयर्स एज अ ब्रांड. And Maria Jalal, very valid point there. While you are building your brand, you have to look at the competition because it's a relative understanding. So aapki jo competition hai, the people, even your own colleagues, ACCAs, you have to be better among the lot. Or I don't use the word better, I use the word best. So you have to be the best among the lot. So aapne us lot se compare karna hai. Agar aap ACCA hai, तो you have to be the best in ACCA. If you are a professional accountant category, agar hum dekhe, so you should be the best professional accountant there. So aapne apni category mein, you have to build that brand. That's mean jo quality aapne deliver karni hai, wo quality kisi aur ki nahi ho sakti. And that's what you have to demonstrate, not assume. आप सिर्फ खुद से assume नहीं करेंगे कि you are a brand. Other people should be able to recognize either through your network or the experience that you are going to generate for them. So guys, thank you very much. I think that's all from my side. Any critical burning question? अब मेरी आपको assignment ये होगी, think about it. अभी तक आप सारा business model canvas जो है वो develop करते आए हैं, high quality, low cost पे generally, except few people who really looked at the different value proposition. अब मेरा challenge आपको ये है कि आपने एक business develop करना है where you are looking as a brand to charge, to develop a brand to charge premium. तो आपने अपनी customer segmentation उस प्रीमियम के लिहाज से डेवलप करनी है, उस ब्रांड के लिहाज से एक्टिविटीज डेवलप करनी है. आपका चैनल और कस्टमर रिलेशनशिप पे जो है उसकी ब्रांड को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो वो क्या एक्टिविटीज होंगी जिसमें आप एक ब्रांड इवॉल्व करेंगे व्हिच लेट यू टू रियली चार्ज अ प्रीमियम कंपेयर टू कंपटीशन. इवन अकाउंटिंग सर्विसेज कुड वर्क लाइक दैट. आपने मार्केट में लॉयर्स देखे होंगे, जूसी चपली बर्गर, यस, सो दैट्स, but you should be charging premium. It's not that कि वो अगर मार्केट में 500 का बर्गर मिल रहा है तो आप इसको 450, 300, 200 का बेच रहे हो. Either you charge 500 or you charge 750, but find out the customer segment who is willing to pay for that.
और अगर ये उस कैटेगरी में आता है जहां पे 200 का बर्गर बिकता है तो आपका 250-300 का बिकना चाहिए। सो आपने अपनी कैटेगरी में देखना होता है और उस कैटेगरी में आपने प्राइसिंग करनी होती है, and the customer segment and everything. So guys, that's all from my side. I think I explained a little bit around the assignment. It's not an easy job, believe me. जब आपने प्रीमियम चार्ज करना है, ब्रांड बिल्ड करना है एज अकाउंटेंट, आपको काफी ज्यादा रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी कि how the brands are built and why people pay premium for that. और जो आप ब्रांड, जो एक्टिविटीज आप अपने बिजनेस के लिए ब्रांड बिल्ड करने के लिए सोचेंगे, थिंक ट्वाइस कि अगर आपने खुद एज अ ब्रांड बनना है, like you become a brand yourself as a personal brand, you are going to build, तो उसके लिए आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, try to link it back with your own self. So Abdul, that's totally a business strategy कि आप वॉल्यूम्स पे जाते हैं, आप उसको आप वॉल्यूम्स देख रहे होते हैं, आप हाई मार्जिन पे नहीं जा रहे होते, बिल्कुल उसकी एक डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है, लेकिन असाइनमेंट इज नॉट अबाउट द वॉल्यूम. असाइनमेंट इज टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, दैट्स मीन उसका एक रीजनेबल वॉल्यूम होना जरूरी है, बट इट स्टिल लीव यू अ गुड मनी ऑन द टेबल. सो आपके पास जो पैसा बच रहा है, जो मार्जिन बच रहा है, दैट शुड बी हायर देन व्हाट competition is charging. So it's not about the different kind of business, it's a very specific assignment to force you to think कि आप क्या एक्टिविटीज करेंगे कि आप अपने कंपटीशन के लिहाज से उस कैटेगरी में जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, उस कैटेगरी में यू कैन चार्ज प्रीमियम. Right, so that's all from my side. Over to you, Harun. Thank you very much, Sajid. Interesting, useful, valuable conversation. Brand building, customer segmentation, pricing, building your own brand. I think the concept that Sajid narrated in the end. Look at yourself as a brand, and then put a price tag to it. I mean, pricing related to market segmentation, your customers segmentation, etc. I think very important aspects of of business decisions, and I think these concepts will go a long way in pitching your customer, pitching yourself, pitching your customer, or pitching your business to the customers. Right? Yes, opening, eye-opening, exactly. Interesting, great. So you're all aware of your assignment, work, task for this coming Saturday, right? Yes, no? Answers? Okay, great, thank you. Thank you very much. All right, so off you go on to a very constructive conversation on Saturday again. जो आप लोगों को लास्ट टाइम टाइम चैलेंजेस आए थे उनको ऑफसेट करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, राइट? जो ग्रुपिंग्स की हुई थी, टीम्स बनाई हुई थी आपने, see if you can give time, justifiable equal time to all teams to present their cases and to argue cases, right? So look at that. वो लास्ट वीक में थोड़ा सा, चूंकि 14th अगस्त 15th अगस्त का भी इवनिंग का भी सेलिब्रेशन भी थी 14th अगस्त की, तो 15th अगस्त मैंने मजाक में कहा था बाय द वे, तो वो सेलिब्रेशंस भी थी, तो आप लोग आई एम श्योर उसकी वजह से भी द पार्टिसिपेशन वाज a little bit low, but please remember this time आप सब लोगों की participation is very important, your contribution is also very important. Okay, I would suggest that the group leads, the team leads, वो थोड़ा सा अपनी टीम्स को encourage भी करें, right? जो थोड़ा सा issue हो रहा था that the session leader was continuously asking for individuals to speak and people were not able to come forward and speak. So उसको देखिए किस तरह आप लोगों ने offset करना है, किस तरह manage करना है. All right, so important announcements once again. जो आप लोगों की social profiling वाली campaign है,
उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने कल चेक किया था, there were 189 artworks ready on the Google Drive. Yeah, आप लोगों में से तकरीबन 290 लोगों ने सबमिट कर दी है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो एक वर्क इन प्रोसेस है वो तकरीबन 100 लोगों के आर्ट वर्क का है। ओके, जिन्होंने अभी तक सबमिट ही नहीं कराए हुए हैं वो प्लीज टेक टाइम आउट और इनको जल्दी सबमिट करा दें। हमारा जो टारगेट नंबर है इस कैंपेन का वो 400 है। वी वुड वांट टू टच द 400 का नंबर with people displaying their artwork on LinkedIn and Facebook. अभी तक LinkedIn पे हमारी मार्केटिंग टीम की जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक तकरीबन 70 लोगों ने अभी तक इस आर्ट वर्क को पोस्ट किया है या अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स में अपडेट किया है। 70। So we want more of that happening. We want ये वही ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज जो भी आप बात कर रहे थे, दिस दैट ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज अराउंड 6 digits, जिसका एडवांटेज इन रिटर्न आप ही लोगों को दोबारा होना है, राइट? तो वो क्यूरियोसिटी, वो एंजाइटी अबाउट द 6 digits प्रोग्राम, दैट हैज टू कम बाय। सो दैट वाज माय एडवाइस। नंबर 1, आप लोग अपने प्लीज आर्ट वर्क जल्दी सबमिट करा दें ताकि उनके ऊपर काम खत्म हो सके। निज़ाम एंड मुतहद प्लीज जो वर्क इन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा जल्दी कर दें। जिन लोगों की फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं थी उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो कोई और आई एम सॉरी, जिन लोगों की फोटोग्राफ्स अप्रोप्रिएट नहीं थी फॉर दिस आर्ट वर्क, उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग दोबारा फोटोग्राफ भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि आज चेक कर सकूं कि आप लोगों को जिनकी फोटो रिप्लेसमेंट हमें चाहिए थी उनको वो भेज दी गई है कि नहीं। तो जिनको वो ईमेल आए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी और फर्क फोटोग्राफ जो अप्रोप्रिएट हो इसके लिए वो प्लीज भेज दें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बहुत से मेंबर से आजकल बात कर रहा हूँ, एफिलिएट से भी बात कर रहा हूँ। 22nd September is around the corner. Recently ACCA has made another offer. आप लोगों को एफिलिएट्स को इसके मुतालिक ईमेल भी आई है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे नहीं की है, प्लीज अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करें ताकि आप लोग ACCA से कनेक्टेड रह सकें। जो सर्विसेज, जो वैल्यू आपको ACCA मेंबरशिप की या ACCA से स्टेक होल्डर होने की वजह से डिलीवर हो रही है, दिस शुड कंटिन्यू। ओके, देयर इज एन इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग ऑफर फॉर एफिलिएट्स, उसको प्लीज एक्सप्लोर करें। जिन एफिलिएट की जॉब कोविड की वजह से अफेक्ट हुई है उनके लिए एक ऑफर अवेलेबल है, प्लीज इसको एक्सप्लोर करें और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी सब्सक्रिप्शंस जो है वो पे करें। बट ओके, जुहैर के बारे में जी, मोहम्मद जुहैर के बारे में हमें इस तरह पता चल रहा था कि हमारे फैसलाबाद के मेंबर्स ने ग्रुप में, सोशल मीडिया ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट किया था अबाउट हिज डिमाइज। ओके, चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। एनी further comments or questions, you know where to contact us. Keep the activity level high in your group. It's interesting to see positive contributions being made by most participants in the group, so keep that energy level up. सजीद को जरा वापस बुलाते हैं। सजीद आज तकरीबन 1.5 महीने से he has been coming on to the show, motivating you. वो आपके जो ब्रेन्स हैं उसको प्लाव कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कोम्बिंग कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक काफी हद तक ब्रेन कोम्बिंग हो भी चुकी है, राइट? माइंडसेट की बातें ज्यादा, व्हाट एंड व्हाई की बातें ज्यादा, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, 30 seconds introduction, I think a lot of things discussed। और मैं जिन लोगों को बन्नू पुलाव मोतर साहब कुछ हुआ वैसे जी आजकल चपली कबाब से बन्नू पुलाव पे पहुंच गए हैं वो। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को मैं अब मेंबर्स को कांटेक्ट कर रहा हूँ,
और वो उस बेचारगी का मुजाहरा करते हैं कि जी हमारी तो सैलरीज 50-60,000 रुपीज है। मुझे एग्जैक्टली वो कन्वर्सेशन याद आती है जो हमने इनिशियल 6 डिजिट प्रोग्राम के अंदर की थी। मेरा जवाब उनको ये होता है कि आप इस जॉब में यू आर देयर बाय योर चॉइस, राइट। आपने कभी अपने अंदर झांक के एक्सप्लोर किया है कि क्या यही आपका पोटेंशियल है? And then my second question to them is, have you thought about joining the 6 digits program? And the one mistake that could lead their profession in another direction, unfortunately, अगर वो नहीं radical steps लेते, so that mistake is not exploring yourself fully, not knowing your strengths. But in any case, हम सजीद को इस वक्त एक partial farewell देने लगे हैं। सजीद partial है because you're going to come back again and again. You're going to bring you back again and again. Sajid has very dedicatedly for about 1.5-2 months every evening, सभी members के साथ, फिर students के साथ, और अभी तो 2 groups बन चुके हैं 5-5 ग्रुपों के साथ, repeating the content. Sajid has very dedicatedly been doing it, and I think he's done a fantastic job. So अगर मैं आप सबसे कहूँ कि अपने mics unmute करें and give a round of applause to Sajid for the fantastic work that Sajid has done to all of you. So will all of you be able to do that? Join me. Yes, मैं सबके mics unmute कर रहा हूँ, all unmuted जितने भी मैं कर सकता हूँ। So इसके बाद we will all give a round of applause to Sajid. All of you please join me. Thank you, sir. Great. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. you very Amazing much. efforts. Thank you, sir. It's not only my side. आप जिस जर्नी से गुजरते हैं वो आपके लिए ज्यादा पेनफुल होती है क्योंकि आप एक मेजर चेंज से गुजर रहे होते हैं in thought process. Congratulations if you recognize that there is a change from a day one till today. I think that's what we are looking for. And congratulations if you have started your journey. Believe me, you will get to your goals as well. Definitely, for sure. Great. Thank you very much. Thank you, Sajid. And with a lot of gratitude, हम आज का सेशन खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह on Tuesday हमारा next session होगा। Sorry, I'm putting all of you back on mute. Right. So inshallah on Tuesday जो हमारा next session है, next topic है, वो होगा ethics and professional skills module. Because your affiliates and students, हम इसको we will not be able to open up your live sessions and run the actual program ESM module. Sorry, once again. Thank you, Nizam. So हम लोग एक्चुअल रन तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन थ्रू प्रेजेंटेशन, थ्रू लॉट ऑफ डिस्कशंस हम उसका रिजल्ट सीख करेंगे। जिन लोगों ने EPSM या एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, हम उनके एक्सपीरियंसेस से भी यहाँ फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर्सपेक्टिव सिर्फ एक मॉड्यूल पास करना नहीं होगा, यहाँ पर्सपेक्टिव होगा इसको completely immerse करना अपने आप को इस EPSM मॉड्यूल के अंदर। Okay, so all the units of the module will be discussed. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये एक्टिविटी हम 1 वीक में कंक्लूड करेंगे एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स की। अगर हमें आगे कंटिन्यू करना हुआ तो हम थोड़ा सा शायद आगे कंटिन्यू भी करें, लेकिन इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो है टैक्सेशन का। So I think around 2 weeks on local taxation, sales tax and federal income tax act. ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अहेड, और उसके बाद हम फाइनेंशियल मॉडलिंग पे जाएंगे, और इस दौरान मैं आप लोगों को कुछ तंग करना शुरू करूंगा विद माय लिटिल केस स्टडीज, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज, जिनके लिए हम कोई फर्क तरीका एंगेजमेंट का ढूंढेंगे। मुझे टीम डिवीजन करनी होगी और टीम डिवीजन के साथ हमें लेकर चलना होगा इन पूरे सेशंस को। So एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मुर्तज़ा आप देखते हैं, अभी तो मैंने 2 सेशंस प्लस 1 अनमॉडरेटेड सेशन इसके लिए सेट असाइड किया है। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर हमें फील हो रहा हुआ कि इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए हमें
और कुछ कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो रह गया है, तो हम इसको फोर्स एक्सटेंड करेंगे। हम तो थोड़ा सा इसलिए फ्लूइड रखा हुआ है, बट अभी तक मेरी जो असर्शन है, जो मेरी एस्पिरेशन है, वो ये है कि हम इसको 1 वीक में कंक्लूड कर सकें। इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर, हमें इसके आगे बहुत सी चीज़ें अभी कवर करनी है, सो वी हैव टू मूव ऑन। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना कुछ हम कवर करके आए हैं अभी तक, इसको भूलना नहीं है, ठीक है? इसको हर चीज़ में, हर अपने फ्यूचर स्टेप में आप लोगों ने अप्लाई करना है। चलिए जनाब, अब हम आज का सेशन इस पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू so very much joining us, and take good care of yourselves, and see you now on Tuesday. Thank you very much, and Allah Hafiz.